at the level of our nation, at the level of our countryside. Many hackers, they hack the systems, they hack the mobile phones, they hack the electronic devices. You can see here, cyber attack statistics की कैसी statistics है worldwide level पे in the year of 2020 फरवरी 2020 के फरवरी में तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था. लॉकडाउन started from the month of March. फरवरी में आपका हुआ था 93.4 मिलियन. वही आपका वर्ल्ड वाइड लेवल पे मार्च होते होते जैसे ही लॉकडाउन लगा 18 या 17 मार्च को लगा था, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा तो 77.4 मिलियन इंक्रीज हो गया साइबर हैकिंग. बिफोर लॉकडाउन 93.4 मिलियन था आपका फरवरी में, और जैसे आपका लॉकडाउन लगा और आपकी ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हुई, वेरी सून to 77.4 million increase, means 177% increase in a single month. Then in the month of November 2020, 409 million increase. You can't imagine how the cyber attackers attack the systems. At the level of India 2020 फरवरी 1.3 million था, वही आपका एक महीने के बाद मार्च होते आपका 3.3 मिलियन पहुंच गया. Then in the month of July, India recorded its highest number of attacks at 4.5 million in the year of 2020. And worldwide 377.5 million in the year of 2020, and India recorded 9.04 million. You can't imagine how the hackers attack our system, attack our information. And they not only attack, they collected some information, they collected some aspect of data from your electronic devices. But आपको पता नहीं चला. You are engaged in your own works, and they have attacked. They have collected your data, your prior information from your electronic devices during the lockdown. Next, cyber security is a shared responsibility. Cyber safety is a shared responsibility. It means that this cyber security module is not only a single person. This cyber safety module is not only mandatory for a single person. Whatever the subject you have chosen, whatever the teachers you are your own regarding the subject, you can attend this session. आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, स्पोर्ट्स, गेम्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, doesn't matter. This is a shared responsibility. It is the combined of a group. It is a combined of a community in which every teachers can attend this training without caring their subject, without regarding their subject. They can attend this training. So this is the shared responsibility. Next, today's presentation we will include some aspects such as there are 5 units CBSE has included. In the first unit, deals with introduction to cyber, because Nikita ma'am told the early. This is the information, and जितना भी आप इसको जानेंगे, जितना भी इसकी गहराई में पहुंचेंगे, उतना ही आपके लिए ये कम साबित होगा. So as far as possible, we will try to understand what is the exact cyber and how to protect internet, how to protect ourselves, our devices from the cyber attacks. Unit first deals with introduction to cyber. Unit 2 deals with the safe internet, how to protect your mobile phones, and what kind of apps you have to install. So many apps you have all installed in your mobile phones. Facebook, WhatsApp भी कई तरह का WhatsApp होता है, GB WhatsApp business, what kind of this all apps, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का हर एक ऐप का जेनरिक एक ही होता है, बेस्ट एक ही होता है, बेस्ट की बात कोई बड़ी नहीं है, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट की बात कोई बड़ी नहीं है, that is the last superlative. So in the same way, safe internet, unit 3 deals with hazards on e-com platform attacks. E-com, that is e-commerce.
प्लेटफॉर्म क्या होती है? So many online shopping websites, Amazon, Flipkart, so many type of there. But you can see 20,000 का मोबाइल आपको 2,000 में ऑफर आ गया आपके मोबाइल स्क्रीन पे। सिर्फ इस लिंक को दबाइए, नीले बत्ती को दबाइए और इस 20,000 की चमचमाती हुई मोबाइल को आप 2,000 में अपना बनाइए। And as soon as you click that link, उसके बाद आपका सारा धन हो जाएगा खाली और आप बजाते रह जाइएगा ताली। This means social media and fake news. We need 4 deals करते हैं आपका सोशल मीडिया। तमाम तरह के लोग अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को शेयर करते हैं। अपने आप को शेयर करने का मतलब क्या हुआ कि अपनी डिटेल्स को शेयर करना फेसबुक पे तमाम तरह के, तो वो डोंट शेयर दिस ऑल थिंग्स। और आज के सीजन से इन द टाइम ऑफ कंक्लूडिंग आपको डर लगने लगेगा कि आपका अपना फोन को आप टच करें या ना करें या उसको रिफ्रेश करके नया मंगवाएं। Deals with 5 online class safety, legal cyber laws and cyber ethics, cyber शिष्टाचार और ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस से कैसे हम सेफ बचें। These all things we will discuss in our today's session. Components of unit. I have already told that कि if something has left in this PPT, because this is the technology information. As far as I have included some PPTs in our session, if anything is left, then some kind of PDF will be shared in a school WhatsApp group so that you can go through that and you can avail yourself, avail your family, avail from your social media and all kind of the fake cyber attackers. So 2 to 3 reading materials, some reading materials will be shared as assessment and reflecting questions. Some videos will be there. Videos will be included. So by the videos, by the help of the videos, we can so much away from this. Unit 1, Introduction to Cyber Safety. Cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. So this cyber is kind of practicing by which we can save our कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, सर्वर। आपने देखा होगा कि बैंक वगैरह में गए क्रेडिट या विथड्रॉ करने के लिए तो पता चलता है कि साइबर सर्वर बंद है, सर्वर हैक अभी नहीं कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट बैंक में जो इंटरनेट का यूज किया जा रहा है वो अभी उसको स्टॉप करके रखा गया है। दैट मींस कि सर्वर नहीं है और लोग इसको समझते हैं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है मतलब बैंक में पैसा भी उपलब्ध नहीं है। That is called etiquette of intranet not working data. They have stopped by some causes. You can protect or defend your computers, servers, mobile devices, electronic systems, network and data from malicious attack. Malicious attack from phishers, vishers and malware. Different type of malware roaming in your mobile phones. But you are not realizing अभी आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें कई तरह के वायरसेस हैं और वो ऐसे वायरसेस कि ये जनरली वायरसेस नहीं है। कई तरह की वायरसेस हैं जो आपकी डाटा को कलेक्ट कर रही है, कर सकती है। कब? जैसे आप अपनी सतर्कता को हटाएंगे तब। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, वन एंड ओनली सॉल्यूशन, सावधान ही सुरक्षा है। Only the alertness is safety. सावधान ही सुरक्षा। जितना ज्यादा अपने आप को संभाल कर रखेंगे, सावधान रखेंगे, उतना ही हमारा डिवाइस सेफ रहेगा। And this cyber safety and security is also known as information technology security or electronic information security के भी नाम से हम cyber safety and security को जानते हैं। Overview of technology. There are some technologies we will discuss should be used in cyber space, phishing, online predator, hacking. अब ये देखिए, ये इस थर्मोटोलॉजी में there are some aspect that is a phishing. अभी phishing क्या होता है? Phishing is kind of a cyber attacking systems by which the attacker send an email
on your email ID, and once you go through that email, your all information will be collected. क्योंकि in a प्रोफेशनल में लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज व्हाट्सएप पे मंगाते हैं या किसी भी अदर सोशल मीडिया पे मंगाते हैं, वो डायरेक्ट अब कहते हैं कि हमें आप मेल करो। तमाम तरह के टीचर्स बैठे हैं, दे ऑल आर teaching class 5, 8, 15 years, and I can't assume कि they have done in any single school. तमाम स्कूल में पढ़ा चुके होंगे। Once they are willing to relocate, they make a resume that is a CV curriculum vitae, and they share that CV to another school. And once you contact another school, the school reply that please forward your resume on the school email ID. So what does it mean? कि वो जो स्कूल जो है, जो आपकी अपनी डाटा को स्कूल के अपने ओरिजिनल और जेन्युइन ईमेल आईडी पे मंगवा रहा है, it means that the school is using the etiquette internet so that कि उसका भी डाटा सेफ है और साथ ही साथ आपका भी डाटा सेफ है। That is called phishing. वो लोग ईमेल के जरिए आपकी डाटा को कलेक्ट कर पाते हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर का मतलब है शिकारी, जो शिकार करता है। ऑनलाइन प्रेडेटर कैसे? फेसबुक, आपका फ्लिपकार्ट, देयर आर सम काइंड ऑफ सोशल मीडियाज एंड ऑनलाइन शॉपिंग एप्स सच एज आपका अमेज़न है। अमेज़न भी दो तीन तरह का है, आप देख सकते हैं कि amazon.in भी है, amazon.com भी है। आप ये भी देखे होंगे कि Amazon पे आप कोई चीज ऑर्डर करना चाहते हैं, वो उसकी कॉस्ट अलग है, और फ्लिपकार्ट पे उसकी कॉस्ट अलग है। क्यों? मटेरियल जैसे व्हाई द कॉस्ट इज डिफरेंट? वो आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। आप अपने YouTube को आपने चलाया, YouTube आपको पढ़ लिया, तभी तो बार-बार आपकी इंटरेस्टिंग थिंग्स को शो कर रहा है। They read about you. They read also कि what kind of things you are interested. किन चीजों में आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और जितनी ज्यादा आप इंटरेस्ट को दिखाएंगे, इंटरेस्ट को कब दिखाएंगे? जब आप उस चीज को बहुत ज्यादा तौर पे यूज करेंगे। तो जितना यूज करेंगे उतना आप इंटरेस्ट को दिखा रहे हैं, और जितना इंटरेस्ट को दिखाइएगा उतना वो ऐप आपके बारे में रीड करता चला जाएगा। तो ये ऑनलाइन प्रेडेटर ये बहुत ही डेंजरस है इन द मॉडर्न एरा। ये करता क्या है कि जो भी आपका फेसबुक को जैसे ले लेते हैं हम लोग, आई कैन गिव मेनी एग्जांपल्स, बट नाउ आई एम गिविंग द सिंपल एग्जांपल दैट इज कॉल्ड फेसबुक। एक फेसबुक है जो कि 80 to 85 MB का होता है, मेगाबाइट का, और वही एक और ऐप आ चुका है जो फेसबुक लाइट करके है। दोनों में क्या डिफरेंट है? एनीवन प्लीज? आईटी डिपार्टमेंट्स एप्लीकेशन है समझ लो फेसबुक है, 80 अप्रॉक्स है, और फेसबुक लाइव है 22 है। हाँ, इस चीज को लोग बहुत ज्यादा से यूज करते हैं इसलिए कि उनको लगता है क्या कि फेसबुक जो है बहुत ज्यादा डाटा को हमारे कवर करता है। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम तरह के फीचर्स इंक्लूडेड है, और वही आपका फेसबुक लाइव जो है वो काम एक ही करेगा, बट फीचर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो फीचर्स कम होगा तो आपके जो डाटा है उसको बहुत कम कलेक्ट करेगा। लेकिन यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम फेसबुक लाइट ऑल्सो, बिकॉज फेसबुक लाइट इज नॉट अ जेन्युइन। साइबर ऑलरेडी रिलीज्ड some guidelines, I can show you later, but cyber released fake apps and the genuine apps. What kind of genuine apps are there and what kind of fake apps are there? And Facebook Lite में जैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, तो उसमें भर के फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, बहुत ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। तो don't accept the online friend request, that is called in online predator। वो ऑनलाइन प्रेडेटर में आता है। इसमें एक और एस्पेक्ट आता है आपका, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने गए, तो ड्यूरिंग द शॉपिंग ऑफ ऑनलाइन देयर आर मेनी शॉपिंग एप्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर देयर, Amazon, फ्लिपकार्ट, और जो चीजें उसमें एग्जैक्ट दिखाई दे रही है वही आपके एक्स्ट्रा मैसेज आपके फोन पे आएगा, आपके नंबर पे, आपके ईमेल पे आएगा कि इतनी कॉस्टली चीजों को आप इतने कम समय में, कम दाम में अपने यहाँ मंगवाएं। तो लोग उसको क्या करते हैं, उसको लिंक क्लिक कर देते हैं और आपका डाटा हो जाता है खाली। आजकल के हम लोग तो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, रिमोट एरिया से, बट आजकल का रिमोट एरिया, नाउ इट इज रिमोट एरिया इज बिकम
is become development area. इसमें जितनी भी माताएं हैं हमारी, including my mother, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. They exactly don't know how to operate the smartphones, but they are operating. They are operating the smartphones. This is YouTube, this is this, this is this. अब उनके मोबाइल में YouTube पे मैसेज आता है, घर बैठे 20,000 महीने कमाए. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गरीब होते घर बैठे 50,000 रुपए कमाए, सिर्फ 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. अब हमारी माता जी कैसे करेंगे? तुम रजिस्ट्रेशन करो घर बैठे. फालतू का करते हैं कि इतने समय से कितने समय तक हम फ्री रहते हैं. इससे जब भी आएगा तो कुछ काम होगा. माँ तो 200 रुपए तो लग रहा है रजिस्ट्रेशन में. वो क्या है आपका? आप उसके लालच में पड़ जाते हैं. घर बैठे 20,000 रुपए कमाएंगे, सिर्फ 200 रुपए ही न देना है. लेकिन आपको ये नहीं पता कि 200 रुपए देने से अगर आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, अगर आपके अकाउंट में पैसा है, money will be stolen. But if your account is not fulfilled by your money, then आपका अकाउंट उसी नजर में आ जाएगा. As soon as you credit, you just डालेंगे आप उसमें पैसा, आपके अकाउंट से वो कटता चला, ऑटोमेटिक कटता चला. So this is called online payment. Next, phishing, hacking. Hacking क्या होती है? Hacking में इस तरह का डिवाइसेस है जो हैकर्स जो होते हैं वो आपके तमाम डिवाइसेस को हैक कर लेते हैं. हैक कैसे करते हैं? आपकी फिशिंग के जरिए, विशिंग के जरिए. अब इसमें विशिंग पार्ट्स क्या होती है? जैसे वाइट रेड कैप फिशिंग, वाइट रेड कैप. अब इन तमाम तरह की चीजें की मदद से वो हैकर्स आपके डिवाइस के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद आपके डिवाइस को हैक कर लेता है. दिस इज कॉल्ड द हैकिंग. सिक्योरिटी ब्रीच के जरिए हमारे ऑनलाइन प्रेडेटर हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं और उसे हैक कर लेते हैं. साइबर अटैक भी बहुत सारा हुआ है ऑनलाइन के जरिए. यहाँ तक कि आप ऑफलाइन में भी जाते हैं लोग वगैरह में, तो इतने भी इतना ऑफर चल रहा है, अपने मोबाइल को रजिस्ट्रेशन करिए, मोबाइल नंबर दीजिए, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आप उसको बताइए. बट आपको क्या पता है कि ये ओटीपी एग्जैक्ट इसी चीज का है या किसी और चीज का है? Nowadays the messages are become fake message, fake news. You can't recognize what is the exact website. तो इन तमाम चीजों के जरिए सिक्योरिटी ब्रीच भी होती है और द हैकर्स, द साइबर अटैकर्स जो भी हमलावर जो होते हैं वो हमारे सिस्टम को लेके चले जाते हैं. टाइप ऑफ हैकिंग एंड इट्स डेंजर एंड स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स. ये साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो किस तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं एंड दे हैक योर डिवाइसेस. चाइल्ड फोटोग्राफी नाउ रिफरेंस एज CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल. ये बहुत ही डेंजर है और इसमें तमाम लोग फंस जाते हैं मैक्सिमम. और ये फंसाने वाला ये नहीं देखता है कि आप कितने करोड़पति हैं, कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के आप मालिक हैं, ऑनर हैं. दे डू नॉट अंडरस्टैंड. वो आपको एग्जैक्टली जानता भी नहीं, जस्ट ट्रैप यू. वो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है. ट्रैपिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रैपिंग सिस्टम ऑनलाइन के जरिए. नाउ यू कैन सी हियर फीचर्स ऑफ एन ऑनलाइन प्रेडेटर. ऑनलाइन प्रेडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं? हम जैसे लोग हैं या कोई भी हो, वो कोई किसी तरह का लिंक शेयर करेंगे. जैसे आप उस लिंक में, जैसे कोई लिंक आपके मोबाइल पे आया, एग्जैक्टली यू नॉट नो कि व्हाट काइंड ऑफ दिस लिंक, और उस लिंक को ऐसे मॉडिफाई किया जाएगा, ऐसे मॉडिफिकेशन उसमें डाला जाएगा और उसकी लुक इतनी अच्छी लगने लगती है जो आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो जैसे ही आप अट्रैक्ट होते हैं और लिंक को सबसे क्या मेरा भी करता है, क्या मेरा जाए, तो लिंक को नीला बटन को दबा करके देखते हैं. जैसे आप नीला बटन को दबाएं और सिस्टम स्टार्ट हो गया, अब आप उसमें फंस गए. आप निकलने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं निकल सकते. अब एक तरह का आपका डिवाइसेस में सिस्टम्स में आता है स्क्रीन शेयरिंग. स्क्रीन शेयरिंग भी होता है. और एक ऐसा डिवाइस होता है, such a device by which one system connect to another system and the system is just sitting at their own place and they are just operating your system. What is exactly called? उस सिस्टम को क्या कहते हैं?
एक जस्ट सॉफ्टवेयर होता है एनीडेस। अब एनीडेस के जरिए क्या होता है कि अगर हम आपके डिवाइस को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर चलाना चाहते हैं, कहीं पे भी बैठे हो, जस्ट आपको कहा जाएगा कि आप एनीडेस इंस्टॉल कीजिए, आप एक ऐप इंस्टॉल कीजिए। आपको तो इंस्टॉल ऐप के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप उस ऐप को सर्च भी करते हैं, कई तरह की ऐप होती है जो आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज एनीडेस, तो एक लाइन में आंसर आएगा, दिस इज काइंड ऑफ अ मॉड्यूल बाय व्हिच वन पर्सन इज ऑपरेटिंग अनदर सिस्टम डिवाइस। आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जीमेल आपका बन जाएगा और आपके उस डिवाइस में ओटीपी जाएगा कि आपके डिवाइस में 6 कोड का एक ओटीपी जा रहा है, आप उसको हमें बता दीजिए। जैसे कि आप बताएं तो आपका वो जो डिवाइस है पूरा का पूरा वो अपने अंदर कैप्चर करेंगे, कैप्चर, अब वो कैप्चर करके आपके डिवाइस में चला रहा है। जितनी मर्जी होगा उतना वो चलाएगा जब तक आप उस चीज को स्टॉप नहीं करते, डिनाई नहीं करेंगे। एनीवेज, तो ये भी आपका आता है इस प्रोसीजर फॉर एजुकेट रोल ऑफ पेरेंट्स टू कॉम्बैट प्रेडेटर्स। अब ये देखिए, नाउ the kids they are using mobile phones regularly, they are using the mobile phones continuously। छोटा बच्चा को देख लीजिए, 6 साल 7 साल का बिना मोबाइल देखे वो खाना नहीं खा सकता, और उसको सबसे पहली लत लगती है यूट्यूब की, कार्टून वगैरह की। दूसरा उसको लत लग जाता है रील्स, और जैसे रील्स डाला तो उसमें इच्छा जाएगी होने लगती है उसके अंदर कि हम इस चीज को बारीकी से जानें। They is willing to understand that things deeply, और वो किसी चीज को शेयर नहीं कहीं टैप कर देता है। अब उसमें डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि जो पेरेंट्स हैं they became stressful to stop their kids to operate the mobile phones and deliberately they are using the mobile phones। नहीं कर पाते, स्टॉप नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, और बच्चे तमाम तरह की चीजों के ऊपर जाते हैं, लिंक को क्लिक करते हैं और तमाम तरह की वीडियोस सारी चीजें देखते हैं। पेरेंट्स स्ट्रेसफुल है, पेरेंट्स कहाँ जाकर अपने बच्चों को दे सकता है। The kids they are using the mobile phone, they are under teenage and they are using the mobile phones continuously। अब कहाँ रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे के लिए? They go through the YouTube, they go through the Google, they search for the different websites, different links, and they are watching something different। How can you stop that? और उसके जरिए भी हमारे अटैकर्स उन चीजों के जरिए उस चीज को अटैक कर देते हैं। गूगल पे आप जितनी 5 मिनट में आप कुछ भी सर्च करके देखिए, अगले 5 मिनट के बाद ओपन कर गूगल और वही सारी चीजें आपके फीड में आने लगेगी। तो इस चीज से भी हमें अपने आप को सिक्योर रखना है। Dangerous online games that have driven teenagers to self-harm and even suicide. Example, the Blue Whale Challenge. So many kids they are using the mobile phones, they are playing games online. There are some online games very dangerous way, and there are challenges of the small kids। बच्चे गेम्स को खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स को खेलते हैं, गेम्स में कई तरह की चीजें आती हैं, लिंक रजिस्ट्रेशन दिस दैट, बच्चा ने उसको किया क्योंकि उसको द किड्स अट्रैक्टेड फ्रॉम दैट गेम, कि उसको खेलना ही तो खेलना है। He can't be stopped by anyone, his seriousness can't be stopped by anyone। बच्चा उसमें जाएगा, खेलेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, डाटा शेयर करेगा, और उसी गेम्स के जरिए कई तरह की टीनेजर्स को चैलेंजेस मिलते हैं कि जस्ट टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। और जैसे कि एग्जांपल है ब्लू व्हेल चैलेंज, कई तरह की चैलेंजेस आती है, ब्लू व्हेल चैलेंज, स्पॉकफिट गेम्स आता है, उसके बच्चे को चले जाते हैं, फ्री फायर तरह की गेम्स आती है, तो उसको बच्चे एक्ट करने लगते हैं, तो अकॉर्डिंगली दे आर एक्टिंग themselves, and once they act themselves they trapped, they have been trapped in that traffic system। और ये काफी डेंजरस हो जाता है, enough quite dangerous for the kids who are under teenage।
Child helpline 24/7 service होती है. There is a small toll-free number 1098. This is the cyber security helpline number 1098. You can note it down कि आपको कभी भी कोई भी चीजों से आगे होते हैं तो आप डायरेक्टली 1098 पे कांटेक्ट करेंगे. And national cyber crime reporting portal है http://cybercrime.gov.in. This is the original website, original link by which you can mention your notice in this platform. इसमें आप अपनी सूचना को दर्ज कर सकते हैं. Unit 2 Safe Internet. Unit 2 में जानेंगे Safe Internet, how to protect our devices from internet. Basic internet safety rules. The measures we need to take for our devices, systems, and personal data to be protected from potential dangers to the internet, and how to protect yourself from the common dangers. Internet nowadays, I have already told, this is the soul of your devices. In every devices, if there is no any internet, the device is meaningless. The device is without soul. So how to protect our device from internet? Internet का भी सही यूज करना, जैसे कि I can give a short example कि you just you have installed any one app. आपने किसी ऐप को इंस्टॉल किया. इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप को रन करने के लिए there are some permissions required. उस ऐप को रन करने के लिए कुछ परमिशन की रिक्वायर्ड होती है. And you exactly don't know what kind of permission required and the app is taking. अब just allow पे चले जाए. तो उस अलाउ करने से आपकी इंटरनेट क्या करता है कि आपके डाटा को अलाउ के जरिए आपके बारे में रीड कर लेता है वो ऐप. और वो ऐप के जरिए जब वो ऐप आप यूज करेंगे तब तक आपकी कई तरह की इंफॉर्मेशंस हैकर्स कलेक्ट कर रहा है. तो डोंट एक्सेप्ट the unnecessary permissions which is required in several apps. So by which we can save our internet, and the measures we require to protect our devices from the internet, we can use different type of software. हम अपने devices में कई तरह की वायरस का यूज करते हैं. एंटीवायरस जैसे कि क्विकहिल अपने डिवाइस में हम यूज करते हैं. इसलिए कि हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें कोई वायरस इंटर ना करे, किसी तरह कोई एंटीवायरस इंटर ना करे. तो ये आपका इंटरनेट वायरस जो है वो एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है आपके डिवाइस को इससे इंटरनेट से. क्यों? बिकॉज थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम वायरसेस इज एंट्री इनटू डिवाइसेस. कुछ इंटरनेट के जरिए जो वायरस होता है वो आपके डिवाइसेस में एंटर कर जाता है. तो कुछ तो एंटीवायरस कुछ सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है, बट इन सम डिवाइसेस और उस तमाम डिवाइसेस में कोई फ्लेक्सिबल डिवाइसेस ही नहीं है. और कोई जब when there is no any flexible devices, then the simply the devices is using without any antivirus. कई तरह के लोग अपने सिस्टम्स को अपने डिवाइसेस को बिना किसी एंटीवायरस के यूज करते हैं एंड द सिस्टम इज रनिंग वेरी वेल. देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर एंटीवायरस. क्यों? क्योंकि उसी एंटीवायरस के जरिए प्रोटेक्ट करेगा और वो इंटरनेट के जरिए आपके डाटा को कलेक्ट करेगा. ये भी आपकी कॉमन डेंजर्स है एंड वी हैव टू स्टॉप इट. जितनी सावधान रहेंगे उतनी ही हम सुरक्षित होगा. सो tea break. After tea break, we will start a short activity and then we will move on next session. That is the second one.